Today we will discuss the thalamus. Okay. So first of all, who will tell me the what is the derivative of prosencephalon, what is the derivative of diencephalon, and what is the derivative of rhombencephalon? Ayushi. तभी तो हम बताएंगे कि कहाँ है थैलेमस, किसका पार्ट है. Yes or no? I am asking the prosencephalon. Prosencephalon के कितने पार्ट है? How many parts of prosencephalon? Anyone? Prosencephalon. कौन बताएगा? बी बैच. उनको शायद प्रैक्टिकल में मैंने बताया है. Telencephalon and diencephalon. Telencephalon develop the cerebral cortex, and diencephalon has many parts. We will discuss. Now, mesencephalon, midbrain, only one, बच गए. Rhombencephalon, yes, it divided in metencephalon and myelencephalon. Metencephalon, pons and cerebellum, and myelencephalon, medulla. Okay. Now, who will tell me the cavity of telencephalon? Yes, lateral ventricle. Which is the cavity of diencephalon? Third ventricle. Third ventricle. Which is the cavity of mesencephalon? Already targeted है. बाहरी तुम्हारी तारीफ तो बाहर मैडम कर गई है, तो क्यों पंगे ले रहे हो मुझसे? Yes, mesencephalon cavity, cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct. And the cavity of rhombencephalon, that is the fourth ventricle. इतना सभी को पता था? Okay, ठीक है. Now coming to the thalamus or diencephalon. Okay, so this is the mid sagittal section of brain. ये सुन लो यार, ये कौस्तुभ तुम्हारी लाइन में दो लड़के खड़े हो, stand up. Yeah, this one. Yeah, stand up. So this is the mid sagittal section of brain. Okay. Now this is the area. It is known as diencephalon. Okay, and it is present. Diencephalon present between the cerebral cortex and the midbrain. It is between the midbrain. This area is the midbrain. This is pons. This is medulla. This is cerebellum. This is cerebral cortex. So this diencephalon, it is present between the cerebral cortex and the midbrain. यहाँ तक क्लियर है सभी को? आदित्य केकड़, come. Again, this diencephalon, it is divided into two: pars dorsalis and pars ventralis. Pars dorsalis and pars ventralis, they are divided by one talus sulcus, that is known as hypothalamic sulcus, and this sulcus, it extends from this foramen. This is known as interventricular foramen, Hanu, interventricular foramen. Okay, also known as foramen of Monro. Okay, to the cranial end of cerebral aqueduct. This is the cerebral aqueduct, the cavity of midbrain. So this is the, the rostral as well as the cranial, both are same. Caudal is tail. Okay, so this is the cranial end or the rostral end of cerebral aqueduct. Okay, and this is the foramen Monro or the interventricular foramen. You know why it is required interventricular foramen? Yes, for the circulation of CSF. From the lateral ventricles, this CSF, it comes from this interventricular foramen to the third ventricle. Okay, third ventricle, from third ventricle to the fourth ventricle through this cerebral aqueduct.
Is this clear? Okay. So this is the hypothalamic sulcus, shallow groove, shallow sulcus, extend from the interventricular foramen to the rostral end of cerebral aqueduct. Clear? Just above this hypothalamic sulcus, this is pars dorsalis. This area, pars dorsalis, and below this hypothalamic sulcus, this is pars ventralis. We are talking about the diencephalon. Okay. Pars dorsalis, it consists of the thalamus, which is the today's topic. Thalamus, this is the thalamus, ovoid gray mass, thalamus, and epithalamus, which consists of your pineal body, habenular nucleus, okay, and the metathalamus, it consists of your lateral geniculate body and medial geniculate body. Okay. So these are the part of pars dorsalis. Pars ventralis, it includes hypothalamus. This area is the hypothalamus. Hypothalamus and the subthalamus. Subthalamus, it just below the thalamus, and it is connected to the your midbrain. This whole area. Okay. Pars dorsalis, pars ventralis. Dorsalis includes thalamus, epithalamus, metathalamus. Pars ventralis, hypothalamus and subthalamus. Okay. So one of the this pars dorsalis, this is this topic, that is the thalamus. This is the ovoid mass. Okay. In this diagram also we can see the interventricular foramen. This is hypothalamic sulcus. Okay, this is hypothalamic sulcus. This is cerebral aqueduct. This is the rostral end. This is pars dorsalis. This is pars ventralis. Okay. This is coronal section. Again, we can see this is the your thalamus. In between this, these are the white fiber bundle. That is known as intervertebral foramen. Okay, and this dot line, this is the your third ventricle. Okay, the third ventricle, it is a slit-like cavity between the two thalami. Okay, we have seen the cerebral cortex, two hemispheres. We have cut that. Okay, so on one side one thalamus, other side the other thalamus. So between the two thalami, okay, and you can see the between the diencephalon of both sides, the slit-like cavity, that is the third ventricle. लेटरल वेंट्रिकल हुआ क्या? हो गया? कैविटीज हुई है तुम्हारे? लेटरल वेंट्रिकल हो गया? Okay, diencephalon, we have already discussed this thalamus, metathalamus, epithalamus. These are the part of epithalamus, habenular nuclei, habenular commissure, posterior commissure, striamedullary thalamus, pars ventralis, subthalamus, and hypothalamus. Now, thalamus, the Greek name, it is inner room. Okay, it's a large ovoid gray mass just above the midbrain, जो we have seen in this diagram. This is the thalamus and this is midbrain. Large ovoid gray mass above the midbrain and part of pars dorsalis. So it is between cortex and brain stem. Brain stem, it consists of what? Black shirt, yeah, stand up. Brain stem consists of what? गुनगुनाओ मत सारे. Midbrain, pons and medulla.
So these three parts they consist of, they form the brain stem. Brain stem तो हो गया ना आपका, sections at superior colliculus, inferior colliculus, pons, medulla, है? हो गया होगा, निकल गया होगा. Okay. So what is the main this function of this thalamus? This thalamus, it acts like a great sensory gateway. Great sensory gateway means all the sensations. Just sit down. Hey, White Shirt, sit down. All the sensation like touch, pain, temperature, proprioception. Proprioception means localization of your joint position and okay. So this is the proprioception. All these sensations they come, relay at this station and integrate. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी सेंसेशन आ रहे हैं फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. एक थैलेमस की बात करूँ तो मैं सिंगल साइड. इफ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट थैलेमस, द सेंसेशन फ्रॉम द right half of the body like touch, pain, temperature, proprioception, and this whole again the touch, pain, temperature from the head and face region. ठीक है ना? ये पता है ना आपको, सर ने पढ़ाया होगा स्पाइनल कॉर्ड. ये हो गया ना आपका लेट ट्राइजेमिनल लेमिस्कस वगैरह वगैरह हुआ है. कैरी दी सेंसेशन फ्रॉम दिस हेड एंड नेक रीजन, है ना? So from this opposite side they come in the thalamus of the left side, from right to left, relay here, integrate. ठीक है? Except one sensation, that is the olfactory. ठीक है? Remember this. All the sensations they come and relay and integrate at this thalamus, and because of that it is known as great sensory gateway of sensations. ठीक है? So it also regulate the consciousness, regulation of sleep and alternate alertness. We'll discuss these functions in last also. Now we can see these are the two thalamus, ovoid, gray mass. Okay, these two thalami separated by this slit-like third ventricle. Okay, slit-like third ventricle. The length of this thalamus, it is 33.5 centimeter. Width is 1.5 centimeter, and the long axis it is oblique from the midline. Okay, oblique. See this. ये ऐसे होती तो straight होती. This is midline. This is obliquely oriented. जैसे अपनी kidneys थी ना, obliquely oriented. Upper pole it is towards the midline. Lower pole it is towards the outside. Far away from the midline. Like that. This it has two ends. This is anterior end. This is posterior end. The anterior end it is towards the midline. Okay, and posterior end it is far from midline. So the axis of this thalamus it is obliquely. Okay, and it forms 30-degree angle. This is diagram from your Vishram Singh. In between these two thalami, there is again some tissue of gray matter. This connect the two thalami. Yes, ये हाँ तुम्हारे साथ वाला स्माइल वो खड़ा कर दो. ऐसे तो चलेगी क्लास में, चलेगी. अरे अब रोड हाँ इसको खड़ा कर लो. Okay, so these two thalami they are interconnected with each other by the gray matter mass
gray matter, that is known as interthalamic adhesion. Okay, but some book says, जैसे हम बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन आती है वन सेरिब्रल हेमिस्फेयर टू दी अदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर टू दी फ्रॉम कॉर्पस कैलोजम, बट इसके अंदर थैलेमस की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती एक दूसरे की तरफ, बट ये बस है ग्रे मैटर मास, ठीक है। इंटरथैलेमिक एडेजन, दिस इज नोन एज इंटरथैलेमिक एडेजन। Anteriorly, this anterior and it forms the posterior boundary of interventricular foramen. Interventricular foramen, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बताया था आपको, देखो, see this is the anterior end of thalamus and it is forming the posterior boundary of interventricular foramen. Posteriorly, these two ends, they are separated with each other by habenular triangle, superior colliculus and the pineal body. ठीक है, so this is the pineal body, these are habenular triangle and this is superior colliculus. You know the superior colliculus and inferior colliculus is the part of midbrain. So these three structures, they separate the posterior end of the thalamus. Clear है? Now see this diagram. So this is the thalami of one side, this is your third ventricle. Okay, this is third ventricle, this is superior surface of thalamus, this is medial surface of thalamus and this is lateral surface of thalamus. So when we see the external feature of thalamus, it has two ends. Ends we have already discussed, the anterior end and posterior end. Okay, the anterior end, it has the anterior tubercle, posterior end it is expanded, also known as pulvinar. Okay, also known as the pulvinar, this area, this expanded part, and this is anterior end. Okay, now surfaces, it has four surfaces, superior surface, this is superior surface, medial surface, lateral surface and inferior surface. Inferior surface कहाँ दिखाई देगी आपको, कौन से डायग्राम में दिखाई देगी आपको? दिखाई देगी इंफीरियर सरफेस इस लेवल पे. सो इंफीरियर सरफेस इट इज रिलेटेड टू दी सबथैलेमस. इंफीरियर सरफेस इट इज रिलेटेड टू दी सबथैलेमस एंड it is also from the inferior surface of pulvinar. Okay, superior surface का क्या है? This is the superior surface. So this is the medial part of superior surface. This is lateral part of the superior surface. ये जो ब्लू कैविटी आपको दिखाई दे रही है, these are the fiber of कार्पस कैलोजम. कॉर्नल सेक्शन में अपन काटेंगे जब ब्रेन को, कॉर्नल सेक्शन काटेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल ऑफ बोथ साइड. ओके, लेटरल वेंट्रिकल ऑफ बोथ साइड. सो दिस सुपीरियर सरफेस इट इज फॉर्मिंग फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल. ये यहाँ पे क्या होगा इसका? फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. कौन बना रहा है? सुपीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस. या आपको जब लेटरल वेंट्रिकल पढ़ाएंगे ना, जब भी वो बोलेंगे फ्लोर ऐसे बन रहा है ऐसे बन रहा है, तो समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, इसमें से भी कौन सा पार्ट? लेटरल वेंट्रिकल, सेंट्रल पार्ट ऑफ योर. यार ये गुनगुन मत करो, वैसे मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूं. तुम्हें नहीं समझ में आता चुपचाप रहा करो कम से कम. जो 2-5 पढ़ने वाले उनको पढ़ने दो, जिसको नहीं पढ़ना चुपचाप बैठो. सो दिस इज सुपीरियर सरफेस. इट इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. एंड विच पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल? सेंट्रल पार्ट, दिस एरिया. ओके, सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल
इसका क्या बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं। अब इसमें सुपीरियर सरफेस का और क्या दिखाई दे रहा है आपको, मीडियल साइड ऑफ सुपीरियर सरफेस इट इज कवर्ड बाय द टीला कोरेडिया ऑफ योर थर्ड वेंट्रिकल, टीला कोरेडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। टीला कोरेडिया ये क्या है, अभी आपका ये सब फॉर्मेशन वगैरह पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? सो जो एपेंडाइमा इट इज कवर all the cavities they are covered by the ependyma and some plexus of blood vessels, ठीक है, and they form the CSF. This is the tila choroidea which forms the CSF of third ventricle, ठीक है। So this area, medial surface of superior surface, medial area of superior surface covered by the tila choroidea of third ventricle. Okay, now you will tell me this is the medial surface and it is forming what? It is forming what? What is this? Third ventricle. So this is the lateral wall of third ventricle. The whole medial surface of thalamus which form the lateral wall of third ventricle. ठीक है? Clear? So this lateral wall of third ventricle it is formed by the medial surface of thalamus. Medial surface of thalamus it is forming the lateral wall of third ventricle. दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आंखें खोल के देखोगे तो। Now this lateral surface, this is the lateral surface. The lateral surface it is forming the posterior lateral wall of posterior limb of internal capsule. What is internal capsule? इंटरनल कैप्सूल हुआ, हो गया, वाह, चलो पहली बार हाँ किया तुमने। नाउ टेल मी द शेप ऑफ इंटरनल कैप्सूल, वी शेप, ओके, इट हैज बैंड, दैट बैंड नोन एज genu, whole band, genu in facial nerve, genu this genu valgus, the band, okay. So the anterior limb, genu and posterior limb of third यहाँ see this section, this is your thalamus and this is internal capsule, दिख रहा है आपको? This is globus pallidus, part of basal ganglia, basal nuclei. So this is anterior limb of internal capsule, this is posterior limb of internal capsule, this is genu of internal कैप्सूल। सो यहां पे देखो थैलेमस, ये मीडियल वॉल है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ थैलेमस एंड विच इज फॉर्मिंग व्हाट, द मीडियल वॉल ऑफ मीडियल बाउंड्री ऑफ इंटरनल कैप्सूल। यहां समझ में आ गया? क्लियर? ओके, नाउ रीड दिस, वी हैव ऑल डिस्कस्ड anterior and tubercle of thalamus pulvinar or hangs. This superior surface forms the central part of lateral ventricle, inferior surface anterior part fused with subthalamus, posterior part free forming the inferior part of pulvinar, medial surface forms greater part of lateral wall of third ventricle and lateral surface it forms the medial wall of medial boundary of posterior limb of internal capsule. एक्सटर्नल फीचर हो गए बेटा, एंटीरियर लिम्ब, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड फोर सरफेस, ठीक है, सुपीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। ओके, नाउ कमिंग टू द इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स, थैलेमस हैज द white fibers and the gray matter, okay. So white fiber it has three parts, the sheet of white fibers covering the superior surface of thalamus it is known as stratum zonale, ठीक है, this one lateral part of this one thalamus it is covered by again white matter, this is known as external medullary lamina, external medullary
lamina, okay, and within the substance of the thalamus there is Y-shaped vertical white fiber sheet. This one, it is known as internal medullary lamina. क्या है? Internal medullary lamina. So three parts. White fibers में क्या है इसका? Three parts. External medullary lamina, which covers the lateral surface of thalamus. Okay. Superior surface, it is white sheet. It is known as stratum journale. ठीक है? And within this gray matter of thalamus, Y-shaped sheet of vertical sheet of white fibers, that is known as your internal medullary lamina. Okay, correct. Internal features में बात करें. This diagram you can use, very important diagram. This diagram you can use in thalamus. This diagram you can use in your basal ganglia. When question comes about the basal ganglia, this diagram you can use in the internal capsule. Okay, ठीक है. So this is the very important diagram, and this diagram also you can use in the lateral ventricle. Floor of lateral ventricle दिखाना होगा. ठीक है. Now coming to the gray matter of thalamus. Gray matter of thalamus. Now this thalamus, it is formed by the multiple nuclei of gray matter mass. ठीक है. This internal medullary lamina, Y-shaped internal medullary lamina, ये सेकंड लाइन, वहां से लास्ट से सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन. स्टैंड अप ऑल ऑफ यू. हर्षल को छोड़ के सारे खड़े हो. हर्षल के आगे वाले स्टैंड अप. यस. अरे तुम्हारा बस का नहीं. Tell me the white fibers of white matter of this thalamus. Yes. जब बात औकात से बाहर की हो रही है ना, तो चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए. मैं एफर्ट मार रहा हूं, गोलियां दवाई लेके पसीने आ रहे हैं, और ये देखो ग्रे मैटर ऑफ थैलेमस. अब की बार आवाज करी ना, 2 साल हो गए मेरे को एफएम से निकले हुए, एक भी पनिशमेंट दिया नहीं है मैंने वैसा वाला. ये सीढ़ियां बनी है बहुत अच्छी है, रोलिंग कराऊंगा इसी में. हाँ ऐसा होता है, यहाँ नहीं होता सिविल में. पेम्पर्ड बेबीज है ना. ओके. सो ग्रे मैटर ऑफ थैलेमस. So this Y-shaped white matter sheet, that is known as internal medullary lamina. It divides this thalamus in majorly 3 parts. Okay. The lateral part, this is the lateral part, medial part, and anterior part. Between the 2 limbs of Y, that is the anterior part. On the medial side, medial part. On the lateral side, lateral part. Okay. So this white matter sheet, it divides this gray matter in 3 parts, majorly in 3 parts: anterior, medial, and lateral. Now, in between these 2 limbs of white matter sheet, this area, it is known as anterior nucleus of thalamus. Anterior nucleus of thalamus, and this anterior nucleus of thalamus, it is very important for your recent memory. It is related your limbic system. आपको लिम्बिक सिस्टम जब क्लास होगी तो बताएंगे. एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, इट इज यूज्ड इन पेपेज सर्किट.
तो उसमें क्या होता है, रीसेंट मेमोरी को बार 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 एक सर्किट बना हुआ है, पेपेज सर्किट, आप उस हिप्पोकैम्पस वगैरह वगैरह बहुत सारे लिम्बिक सिस्टम में पढ़ाएंगे आपको. सो दिस एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, इट कम्स इन द पेपेज सर्किट which is important for your recent memory. Okay. Or now this lateral part, again it is divided in dorsal and ventral, dorsal and ventral. So these nuclei, they are known as dorsal tire nuclei. Which are those? Lateral dorsal, lateral posterior and pulvinar. They are the part of dorsal tire of ventral nuclei. ये पार्ट देखा था आपने, सुन, ये लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस. दिस इज मीडियल पार्ट, दिस इज एंटीरियर पार्ट. ये वाई इनको बांट रही है ऐसे करके. अभी ऑन द लेटरल साइड में अगेन दिस लेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस, इट इज डिवाइडेड इन डोर्सल टायर एंड वेंट्रल टायर. ठीक है. डोर्सल टायर में कौन कौन से आएंगे? लेटरल डोर्सल, लेटरल पोस्टीरियर एंड पल्विनार. वेंट्रल टायर में कौन कौन से आएंगे? वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, ऑल्सो नोन एज वेंट्रल इंटरमीडिएट ऑल्सो, ओके, एंड वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल. ठीक है. दीज आर द न्यूक्लियस. ठीक है. सो दीज आर दी dorsal tire, these are ventral tire, and other nuclei which are present in the your interthalamic, this intermedullary lamina, these are interthalamic nucleus. इसके अंदर रहते हैं, that is known as centromedian nucleus also. इसके अंदर जो है, this is centromedian nucleus. Okay. other nuclei, these are the paraventricular nuclei. ठीक है. paraventricular nuclei, reticular nucleus, this is reticular nucleus, and MGB and LGB, they are the part of metathalamus, but they are part of thalamus. Study purpose se we study these LGB and MGB in under the topic of metathalamus, but they are part of nuclei of thalamus. Okay. So what is medial geniculate body and lateral geniculate body? So these are the other nuclei: dorsal tire, lateral dorsal, lateral posterior and pulvinar, ventral tire, ventral anterior, ventral lateral, ventro posterior lateral. ठीक है. Again this ventro posterior lateral, it is divided into two. Ventral posterior है, it is ventro posterior again divided into two. किस किस में? Ventro posterior lateral and ventro posterior medial. Ventral anterior, ventral lateral and ventral posterior. Ventral posterior divided into two. ठीक है. Ventro posterior lateral and ventro posterior medial. ठीक है. इनका यूज है, आपको सर ने बताया भी होगा, जब आपके जो सेंसेशन जाते हैं ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, मीडियल लेमनिस्कस से, तो कहाँ लास्ट में जाके कहाँ कौन से थैलेमिक न्यूक्लियस में जाते हैं? एक होता है वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल, एक होता है वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल. ठीक है. So this is the diagram from your Vishram Singh. Anterior nucleus, dorsomedial nucleus. On lateral part, lateral dorsal, lateral posterior, pulvinar, lateral. These are the dorsal tire. Ventral anterior, ventral lateral, and यहाँ पे आपका ventral posterior. Ventral posterior again divided into ventral posterior lateral, VPL and VPM. ठीक है. And the other nuclei, they are MGB, LGB, midline nuclei, also known as paraventricular nuclei, also known as paraventricular nuclei, and reticular nucleus. And you can see this reticular nucleus, it is separated from the thalamus by axonal medullary lamina. nuclei clear हो गए? क्वेश्चन आता है तुम्हारे, किति stand up. Tell me the nucleus of thalamus. Any nucleus, you know. No.
एंटीरियर न्यूक्लियस कहाँ होता है? Where is the location of anterior nucleus? Okay. So these nuclei, they are grouped as specific group, functionally specific, non-specific, and your reticular nuclei. थैलेमिक न्यूक्लियाई क्वेश्चन आता है तुम्हारे यहाँ, तो वो एक डायग्राम बनाना है और फिर थैलेमिक न्यूक्लियाई के कनेक्शन एज वेल एज फंक्शन. ठीक है, बड़ा ही टफ लग रहा होगा, लेकिन आई एम ट्राइंग कि तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं है. ओके, सो व्हाट इज स्पेसिफिक न्यूक्लियाई? स्पेसिफिक न्यूक्लियाई क्या है? इनका जो एफरेंट है, ये चीज समझने के स्पेसिफिक क्यों? एफरेंट कम फ्रॉम द असेंडिंग ट्रैक. असेंडिंग ट्रैक यू नो, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस. लेटरल लेमिनिस्कस नहीं होती क्योंकि दैट फिनिश्ड एट द मिड ब्रेन सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल, है ना. और नॉन स्पेसिफिक क्या है? नॉन स्पेसिफिक मीन्स efferent of these nuclei, they comes from the other nuclei of thalamus only or around the thalamus, like hypothalamus. You can see it from direct cephalon also. ठीक है, तो ascending track से इनके efferent नहीं आ रहे. efferent कपिल. What is efferent? What is efferent to the cerebral cortex? हाँ, खड़े होके बताओ ना, ऐसा क्या? कपिल क्या लेके जाओ? चाय, पल्स. न्यूक्लियस से इफेक्टर के पास, न्यूक्लियस से इफेक्टर के पास लेके जाता, दैट इज द इफरेंट. मेरे को सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड यदि मैं बात करूं आई की, अब बताओ कि आई की तरफ जो आ रही हैं चीजें, दैट विल बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू दी efferent. yes. और यदि कोई सेंसेशन लाइक olfactory स्मेल, इट इज गोइंग फ्रॉम नोज टू दी, कहां पे? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, दैट इज दी एफरेंट. इतना समझ में आता है तुम लोगों को? एफरेंट इफरेंट आता है? ओके, गुड. सो कमिंग टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? अच्छा, एक चीज, चलो थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं. बहुत टिपिकल न्यूरो एनाटॉमी चल रही है. आपने एक चीज देखा, बाहुबली पिक्चर देखी है? देखो अभी तुम्हारी नींद खुलेगी. बाहुबली पिक्चर देखी है? अरे बाहुबली 1 और 2 देखी है? लास्ट वाले देखी है? पक्का देखी होगी लास्ट वालों ने तो. अरे देखी ना, पिक्चर भी नहीं देखते? ओके, वेरी गुड. कितनी रिलीज हुई है बाहुबली अभी तक? ओके, एक्टर कौन है उसमें? प्रभास. वेरी गुड. ओके, और वो माताजी कौन थी उसकी? शिवगामी. भल्लाल देव कौन था? भल्लाल देव कौन था? है किसका भाई? प्रभास का भाई. बड़ा था छोटा था? भल्लाल मीन्स बड़ा भाई, है ना. ओके, अभी तुमने भल्लाल देव का जो पिताजी को देखा था? देखा? उसका पोस्टर देखा था तुमने? उसका हाथ आपने देखा था? ऐसे रखा था उसने? देखो ऐसा था ना. धीरे से आके बोलता, शिवगामी, भल्लाल बड़ा बेटा है, इसको ही राजा बनाना है, बोलता है ना. अरे सुना है ना वो? तो देखो उसमें एक चीज थी, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, कि दैट पोस्चर ऑफ हैंड, मे बी डायरेक्टर ने लिया नहीं लिया, बट मैंने ऑब्जर्व किया, दैट पोस्चर इट वाज लाइक थैलेमिक हैंड. थैलेमिक हैंड, उसके अंदर क्या होता है आपका? दिस इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स
इंटरफेलेंजियन दे आर एक्सटेंडेड, ठीक है, बट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट दिस वन इट इज फ्लैक्स, रिस्ट फ्लैक्स एंड फोरआर्म प्रोनेटेड। तो कुछ ऐसा ही रखता है ना, ऐसा करता करता आता है शिवगामी आता है। तो दैट इज रिलेटेड टू योर थैलेमस, थैलेमिक हैंड, ठीक है, याद रखना। चलो ब्रेक हो गया, अब नाउ कमिंग टू दिस न्यूरल एनाटॉमी। सो स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, स्पेसिफिक न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं? वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल एंड वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल, दिस पार्ट। जो वेंट्रोपोस्टीरियर हमने बात की थी, वेंट्रोपोस्टीरियर इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल एंड वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल। So these are the two specific ventroposterior nucleus afferent. Specific means the afferent come from ascending tract, trigeminal lemniscus, medial lemniscus, spinal lemniscus, ठीक है। So see this VPM, the afferent come from trigeminal and solitary-thalamic tract. Solitary-thalamic tract का means what is this? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस नाम सुना आपने? दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन है ना। तो वहां से जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस से जो फाइबर्स आ रहे हैं एफरेंट, दे आर नोन एज सोलिटेरो, मीन्स न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस टू दी थैलेमस, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज सोलिटेरो थैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, एंड trigeminal lemniscus. So these two tracts, they are forming afferent to the VPM. Okay, efferent कहां होगा? थैलेमस से मतलब गया दूर। इसमें जो रेफरेंस पॉइंट क्या है? थैलेमस है। The tracts coming to the thalamus, they are afferent. Tracts coming out from thalamus to the cerebral cortex and other parts, ठीक है, दिस इज इफरेंट फ्रॉम थैलेमस। ये उस कनेक्शन में बात नहीं कर रहे हम होल बॉडी का, में जहां से पेन आ रहा है तो आ रहा है। इन रेफरेंस टू द थैलेमस, द ट्रैक्ट्स विच आर कमिंग टू द थैलेमस एंड फ्रॉम द थैलेमस, इफरेंट फ्रॉम द थैलेमस। समझ में आ रहा है? ओके, सो दीज टू एफरेंट्स एंड जा कहां रहे? पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस, यू नो, सेंट्रल सल्कस के बिहाइंड, दिस गायरस इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस, एंड दिस एरिया इट इज नोन एज एरिया 312, also known as प्राइमरी सेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, ठीक है। सो स्पेसिफिक थिंग, impulse from face and head area, it comes to the VPM, not from the body, not from body। VPM को कौन सा आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है? फेस एंड हेड रीजन से आ रहा है VPM के, ठीक है। VPL, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल, इसमें कौन कौन सी लेमनिस्कस है? मीडियल लेमनिस्कस एंड स्पाइनल लेमनिस्कस, ठीक है। अगेन इफरेंट गोज टू दी पोस्ट सेंट्रल गायरस, अगेन प्राइमरी सेंसरी एरिया, एरिया 312। कौन सा? एक्सटीरोसेप्शन मीन्स पेन, टच एंड टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शन। कभी आप तुमसे ही पूछ लेते हैं व्हाट इज एक्सटीरोसेप्शन? पेन, टच एंड टेम्परेचर, दीज आर एक्सटीरोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स लोकलाइजेशन ऑफ योर जॉइंट एंड बॉडी, ठीक है, और द लिम्ब। सो फ्रॉम होल बॉडी एक्सेप्ट फेस एंड हेड। फेस एंड हेड क्यों एक्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये कहां से आ रहे हैं आपको? ट्राइजेमिनल के थ्रू आ रहे हैं। ये क्लियर है ना? तो मैं ट्राइजेमिनल के थ्रू इस एरिया से आता है, अदर पार्ट किससे आता है? मीडियल एंड स्पाइनल से। सो दीज टू न्यूक्लियस दे आर प्रेजेंट इन दिस एरिया। नाउ वेंट्रल एंटीरियर, दिस वन एंड दिस वन, वेंट्रल एंटीरियर एंड दिस वन। स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं अपन। स्पेसिफिक मीन्स इनको एफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द थैलेमस। वेंट्रल एंटीरियर, इसको कहां से आ रहा है? ग्लोबस पैलिडस।
globus pallidus, it is the part of what? Part of basal ganglia. ठीक है, कहां से आ रहा दिखाता हूं एक डायग्राम में. दिस इज दी सॉरी, दिस इज द globus pallidus. ठीक है, यहां से आ रहा, कहां पे आ रहा? वेंट्रो एंटीरियर पे. तो दिस इज एफरेंट. ठीक है, इफ्रंट कहां जा रहा है इसका बेटा? इन एरिया 6 and 8 ऑल्सो. एरिया 6 and 8. सो ये डायग्राम आपको बनाना है, वो टेबल तो आपको पढ़नी है. ठीक है, उसमें फंक्शंस भी लिखे हैं, बट जब ट्रैक्स की बात, ये आपका कनेक्शंस की बात होगी, तो ये डायग्राम. इसमें भी अपन ने देख लिया वीपीएम, वीपीएल का देखा अपन ने. वीपीएम में कहां से आता है? ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस एंड सोलिटेरोथैलेमिक. दीज आर द एफरेंट, एंड फ्रॉम दैट इट गोज टू द प्राइमरी सेंसरी एरिया 312. ठीक है, वीपीएल अगेन यहां पर रिले हो रहा है मीडियल लेमनिस्कस एंड स्पाइनल लेमनिस्कस के थ्रू, देन गोइंग टू द प्राइमरी सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, वेंट्रल एंटीरियर coming from afferent, coming from globus pallidus, part of basal ganglia, okay, and going to the this premotor cortex area 6. ठीक है, then from dentate nucleus of cerebellum. आपने पढ़ा है cerebellum? पढ़ा बेटा? cerebellum में एक न्यूक्लियस होता है dentate nucleus. और कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? DGFS है ना. dentate एक को मिला के भी बोलते हैं, मिक्स करके भी बोलते हैं. इंटरपोजिटर. यस, नाम बताओ अलग अलग. डेंटेट के अलावा कौन सा है? एम्बोलिफॉर्म, फेस्टिजियस. रूफ कौन सा बनाता है? ग्लोबस. ओके, सो आपने सेरेबेलम पढ़ा होगा ना. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सेरेबेलम. दिस इज द पार्ट ऑफ सेरेबेलम, डेंटेट न्यूक्लियस. तो डेंटेट न्यूक्लियस, ये बीच में आ रहा है एक मिड ब्रेन का पार्ट, रेड न्यूक्लियस. ठीक है, सो इसको इस फाइबर, एफरेंट फाइबर कौन से होंगे? डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक. डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक एफरेंट, दे कमिंग टू दी वेंट्रोलेटरल पार्ट. यहाँ पे वेंट्रोलेटरल था ना, वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रोलेटरल, ये हमने ऑलरेडी कर लिया. तो यहाँ सेरेबेलम से कहां पे आ रहे हैं? सेरेबेलम से कहां से आ रहे हैं? डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक. किस पार्ट में? वेंट्रोलेटरल, और ऑल्सो नोन एज वेंट्रल इंटरमीडिएट. ठीक है, इस पार्ट में ही आ रहे हैं. तो आप एक चीज देख रहे हो, दिस थैलेमस इट इज कनेक्टेड टू योर बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबेलम. सेरेबेलम का फंक्शन आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट वगैरह वगैरह. तो ये फंक्शन में इसका भी रोल है. यदि यहां गड़बड़ हो जाए तो ये हो पाएगा आगे जाके? यदि मैं इसको खत्म कर दूं, इसकी वेस्कुलरिटी खत्म कर दूं, तो क्या आगे जाके ये रिले हो पाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में? नहीं ना. तो दिस ऑल्सो इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम एज वेल एज ग्लोबस पैलिडस, मींस बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया एंड इसके फंक्शन को भी ये मॉड्यूलेट करता है थैलेमस. ठीक है, ओके. नाउ ये क्या था? ये व्हाट, विच न्यूक्लियस इज दिस? देखो यहां देखते जाओ ना, लेटरल डोर्सल. ठीक है, अब ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई आ रहे हैं. स्पेसिफिक ये हो गए सारे, दीज आर दी स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक में क्या आएंगे? लेटरल डोर्सल. अब ये लेटरल डोर्सल, लेटरल पोस्टीरियर, इनका एफरेंट कहां से आ रहा है? बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से आ रहा है. ठीक है, वेंट्रल टायर ऑफ न्यूक्लियस. एफरेंट कमिंग फ्रॉम वेंट्रल टायर ऑफ न्यूक्लियस. इफ्रंट कहां पे जा रहा है? लेटरल डोर्सल का सिंगुलेट गायरस. जो आप कार्पस कैल्यूजम के ऊपर से एक गायरस देखी आपने, सिंगुलेट गायरस. अगेन दिस सिंगुलेट गायरस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम, ओके. लिम्बिक सिस्टम, इट इज रिलेटेड टू योर इमोशनल बिहेवियर, ओके, एंड मेमोरी ऑल्सो. उसी में पेपेज सर्किट भी मिलता है. so this ventral dorsal afferent come from the ventral tire and goes to the cingulate gyrus, and this lateral posterior afferent come from ventral tire and goes to the superior parietal lobule. Parietal lobule, it is divided into two, superior parietal lobule and inferior parietal lobule. ठीक है,
अब देख लो उस लिस्ट को। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक में ये दो तो ये आ गए थे अपने। वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल एंड वीपीएल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये हमने कर लिया। डेंटेटो रूब्रो ये वगैरह वगैरह जा रहे हैं। सेरेब्रल इंपल्सेस को यहाँ पर रिले होता है। स्ट्राइटल इंपल्सेस मीन बेजल गैंग्लिया वाली इंपल्स यहाँ पे रिले हो रही है। एमजीबी एंड एलजीबी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑडिटरी फाइबर फ्रॉम इंफीरियर कॉलिकुलस। यू नो सुपीरियर ब्रेकियम होता है, एक इंफीरियर ब्रेकियम होता है जो सुपीरियर कॉलिकुलस को कनेक्ट करता है जिस एमजीबी से। ऑडिटरी फाइबर फ्रॉम इंफीरियर कॉलिकुलस कहां पे रिले करते? प्राइमरी ऑडिटरी एरिया 41 एंड 42। इफरेंट कहां पे जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है, किसका? एमजीबी का, दिस वन एमजीबी। ठीक है, कौन सी सेंसेशन कैरी करती है ये? ऑडिटरी इंपल्सेस। एलजीबी क्या है? ऑप्टिक ट्रैक, जो आपने लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का आपने सर ने पढ़ाया होगा। दिस ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू कहां पे जाता है? कॉर्टिकल एरिया, एरिया 17, प्राइमरी विजुअल एरिया, एरिया 17 क्या कैरी करता है? विजुअल इंपल्सेस। तो मेरा कहने का मतलब क्या, देखो हर एक सेंसेशन, विजुअल, हियरिंग, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, ऑल आर गोइंग थ्रू दिस थैलेमस। कितना इंपॉर्टेंट है थैलेमस? यदि इसमें एक साइड का थैलेमस गया तो आज में सारी चीजें ये वाली अपोजिट साइड की गई। अपोजिट साइड बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? मेडुलर डिकसेशन समझते हो? मेडुला में डिकसेशन था एंड दीज डिकसेशन दे फॉर्म द पिरामिड ऑफ मेडुला। वहां पे ये क्या हो रहा है? इधर का इधर हो जाता है मामला। नाउ नॉन स्पेसिफिक, वी हैव ऑल नो दिस। डीएस अपना ही है, आराम से चलेंगे। अच्छा, लेटेस्ट में कौन सी पिक्चर आने वाली है? मूवी, लेटेस्ट मूवी कौन सी है अभी? अच्छा, अभी अभी लेटेस्ट में एक मूवी आई, जैसे हम बोल रहे हैं ना, एक वेंट्रल पोस्टीरियर, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वेंट्रल पोस्टीरियर, मीडियल, वेंट्रल पोस्टीरियर, लेटरल। हमने सोचा था ये हम ही करते डिवाइड, लेकिन ये बॉलीवुड वाले भी करते हैं आजकल। हाउसफुल 5 ए एंड बी करते ना, ए एंड बी। क्यों किया ऐसा इन्होंने? अरे ये सिंपल सवाल का जवाब दे दो, पैसा कमाने के लिए। लोग सोचे इसमें पता नहीं कुछ है, ये लोग सोचे इसमें कुछ है, और फिर एक बार ये देख लो, फिर ये भी देखने जाओ, पैसा कमाओ। ठीक है, तो वो लोग तो पैसा कमाने के लिए ए एंड बी में बांट रहे हैं, हम लोग पढ़ाने के लिए। नाउ कमिंग टू नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक क्या है? आपका ऐसा कंसेप्ट समझ में आया? नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? एफरेंट कहां से आएगा? थैलेमस और around the thalamus, not from the ascending tract. So do not receive afferent from ascending tract but have connection with other diencephalic nuclei. Okay, cerebral cortex के वो एरियाज हो गए आपके? एरियाज हो गए? Tell me first, which is the micturition center in cerebral cortex? बता दो, जाओ। नहीं पता तो बैठे रहो। भाई क्लास इज इन कंटिन्यू, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें? चलो बाहर हवा लो थोड़ी सी, है? जाओ जाओ जाओ। नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, फर्स्ट एंटीरियर न्यूक्लियाई। एंटीरियर न्यूक्लियस, इट इज कनेक्टेड टू द मेमलरी बॉडी, टू द थैलेमस। एफरेंट क्या होगा? मेमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट, मेमलरी बॉडी टू द थैलेमस। इफरेंट कहां जाएगा इसका? अपन ने ऑलरेडी देखा था, इसका और इसका इफरेंट एक ही जगह जा रहा है, सिंगुलेट गायरस। एंड दीज बोथ आर दीज सिंगुलेट गायरस रिलेटेड टू द लिम्बिक सिस्टम, एंटीरियर न्यूक्लियस पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, सिंगुलेट गायरस। तो किसके लिए जरूरी है? अटेंशन एंड
recent memory. What happened? इतनी टॉक्सिक क्लास हो गई, नोजे होने लग गया। अटेंशन एंड रीसेंट मेमोरी। रीसेंट मेमोरी मीन्स समझ आ रहा है, पेपेज सर्किट एंटीरियर न्यूक्लियस से रिलेटेड, इसलिए रीसेंट मेमोरी है इसका रिलेशन। थोड़ा कनेक्ट करना, नहीं रट्टा मारोगे फिर। मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस, द एफरेंट कम फ्रॉम अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई एंड हाइपोथैलेमस। जाएगा कहां पे? प्री फ्रंटल गायरस के अंदर, वहां पे एरिया 9, 10 एंड 11 है। ये बताओ प्री फ्रंटल एरिया 9, 10, एरिया 9, 10 ये रिलेटेड टू दी व्हाट? रिलेटेड टू दी इमोशनल बिहेवियर एंड और भी कुछ होता है, पर्सनैलिटी, इंटेलेक्ट एंड एक और, हाँ, सोशल बिहेवियर। यदि यहां पे लग जाए किसी को फ्रंटल एरिया में तो फिर वो अनसोशल एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, कहीं भी। So medial dorsal nucleus, it is related your mood and emotional balance. Lateral dorsal, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, ये कहां से, इनका कहां से कनेक्शन है तीनों का? फ्रॉम दीज वेंट्रल टायर। देखो तीनों का वेंट्रल टायर जा कहां पे रहा? लेटरल डोर्सल आपने ऑलरेडी देखा था, प्रीक्यूनियस एंड सेंट्रल गायरस। ये क्या कर रहा है? इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, बोथ इंटीग्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन। लेटरल पोस्टीरियर का ऐसे एक डायग्राम देखा था अपन ने सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में, अभी कनेक्शन में दिखाऊंगा। पल्विनार अगेन इट एफरेंट कम फ्रॉम दीज वेंट्रल टायर। ठीक है, इफरेंट कहां पे जाएगा? एसोसिएशन एरिया पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब्स, एसोसिएशन एरिया। ठीक है, सो दिस पल्विनार इंपॉर्टेंट, कोरिलेट विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन विथ अदर सेंसेशन। ठीक है, आपका विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को अदर सेंसेशन से कोरिलेट करता, कहा? पल्विनार। नाउ रेटिकुलर न्यूक्लियाई, these are the reticular nuclei. As you know, interthalamic nuclei, it is also related to the reticular system. Largest one the centromedian, यहाँ पे था interthalamic इसके अंदर, and this paraventricular nuclei, these are the reticular nuclei. Reticular nuclei का किससे कनेक्शन है? ARAS किससे है? Ascending reticular activating system। फिजियोम पढ़ा ना, जो आपके रिदमिक सिस्टम आपको जगा के रखता है, वेकफुल अराउजनेस, जो अभी तुम्हारा एकदम शट डाउन हो रहा है। ARAS शट डाउन हो रहा है ना अभी, ARAS, तो वो किससे कनेक्टेड है? थैलेमस में, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। ओके, देख लो कहां पे होता है? ब्रेन स्टेम में होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन बोथ। ये मैंने रेटिकुलर न्यूक्लियाई, ब्रेन स्टेम। इफरेंट कहां जाएगा? ऑल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, होम पार्ट ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रेन स्टेम अगेन अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई एंड कार्पस स्ट्रैटम इन्वॉल्व इन अवेयरनेस ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई एट थैलेमिक लेवल। यदि थैलेमिक लेवल पे भी आपको पता है, क्रूड पेन एंड टच का एनालिसिस आपको थैलेमस में भी हो सकता है, इसके लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसके कारण? देख, इन्वॉल्व इन अवेयरनेस ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई एट थैलेमिक लेवल। So this is the diagram of connections. We have all know these connections. Specific वाले ये हैं, नॉन स्पेसिफिक वाले ये हैं, वेंट्रल लेटरल, मीडियल डोर्सल, पल्विनार, वेंट्रल लेटरल डोर्सल, लेटरल पोस्टीरियर, सुपीरियर पैराइटल, सिंगुलेट गायरस। इफरेंट कहां जा रहे? प्राइमरी सेंसरी एरिया के ये वाले आपके प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, कहां से जा रहे हैं? ग्लोबस पैलिडस वगैरह वगैरह। ये वाला डायग्राम आपको यू हैव टू राइट इन कनेक्शंस ऑफ थैलेमस। नाउ कमिंग टू फंक्शन, सभी हमने ऑलरेडी मैं छोड़ूंगा 5 मिनट का, थोड़ी देर बाद छोड़ना। फंक्शन ऑफ थैलेमस आपने सभी सारे पढ़ लिए, आप खुद ही बता सकते हो। हर जगह हमने कनेक्ट कर लिया सभी के सभी सारे कनेक्शन। फर्स्ट ये लिखना है फंक्शन ऑफ थैलेमस।
sensory integration and relay station for all sensory pathway except olfaction. जो हमने पढ़ा ना, ट्राइजेमिनल से फेस एंड हेड के पेन टच टेम्परेचर आ रहे हैं, अदर बॉडी के आपका मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनस से यहाँ रिले हो रहे हैं, एक्सेप्ट और एमजीबी एलजीबी से ऑडिटरी एंड ऑप्टिक विजुअल्स आ रहे हैं. तो सारे इंपल्सेस दे आर रिलेइंग इन थैलेमस. ओके, कैपेबल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पेन, थर्मल एंड टेक्टाइल सेंसेशन. जनरली मैंने अभी अभी बताया था आपको, आगे जाके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाकर के ये होता है, लेकिन क्रूड पेन, टच एंड टेम्परेचर, आपको टेक्टाइल सेंसेशन, दिस थैलेमस आल्सो कैन इंटीग्रेट. इन्फ्लुएंस वॉलेंट्री मूवमेंट, इसका कोऑर्डिनेशन, यदि मैं ऐसे कर रहा हूं ये सही जगह पे पहुंच रही है. फिंगर नोज टेस्ट, अरे पढ़ाया तुम्हें सेरेबेलम में, पढ़ के भूल जाओ. फिंगर नोज टेस्ट सेरेबेलम का काम है, ठीक है. दिस इज वॉलेंट्री मूवमेंट. ये भी इन्फ्लुएंस होती है किसके थ्रू? बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबेलम. देन इट गोज टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है. एंड फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे में वापस से इफरेंट आते हैं जब आपका एक्शन होता है, ठीक है. सो ये कनेक्शन कैसे हो रहे थे? डेंटेटो रूब्रो थैलेमिक अपन ने देखे थे. कौन सा न्यूक्लियस यूज हो रहा है इसके अंदर? कौन सा न्यूक्लियस यूज हो रहा है? दिस वन, ये सेरेबेलम वाले वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, ये वाला ग्लोबस पैलिडस बेसल गैंग्लिया, अभी बात की थी हमने. थ्रू असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ARAS, ठीक है. असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मेंटेन स्टेट ऑफ वैकफुलनेस एंड अलर्टनेस. जो अभी क्या हो रहा है पूरी क्लास का, धीरे धीरे जैसे बल्ब धीरे धीरे ऐसे जाता है ना, डिमिनिश्ड हो रहा है, ऐसे ऐसे करते. इंपल्स रिसीविंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस मैंने बताया था, कुछ नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई दे रिसीव, बहुत है, चलो आओ, दे रिसीव एफरेंट फ्रॉम अदर न्यूक्लियाई ऑफ डायनसेफेलोन, ठीक है. जिसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के फंक्शन फिजियो में हुआ है क्या? हाइपोथैलेमस, ओके, न्यूरन हुआ. So this projecting to prefrontal and cingulate gyrus and determination of mood, ठीक है. Role on recent memory and emotion because of it is related to the limbic system. Limbic system, it is used for your recent memory, Pepez circuit and जो आपका cingulate gyrus वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आपके लिम्बिक सिस्टम एंड सेक्सुअल बिहेवियर ऑल्सो, इट इज रिलेटेड टू दी लिम्बिक सिस्टम. मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, इमोशंस एंड सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज फ्रॉम योर लिम्बिक सिस्टम. So role in recent memory and emotion, influence electrical activity of cerebral cortex. These are the functions. अपन ने यदि आप ढंग से पढ़ते चलोगे न्यूक्लियस को और कनेक्शंस को, तो ऑटोमेटिकली आप यू कैन राइट. मेटाथैलेमस हमने पढ़ लिया है, ठीक है. एलजीबी एंड एमजीबी. एलजीबी किससे रिलेटेड है? एलजीबी किस, एल एबीसीडी में पहले आता है या एम? बताओ पहले. एल आता है, एम? एल पहले आता है. विच सेंसरी एरिया इट इज अबाउट? आईज, देन ऑडिटरी. तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, इट इज रिलेटेड टू दी विजुअल आईज, ठीक है. हियरिंग, ऑडिटरी, इट इज रिलेटेड टू दी, जो बाद में आ रहा है, नीचे आ रहा है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है. इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा. मीडियल जेनिकुलेट बॉडी रिले स्टेशन फॉर ऑडिटरी पाथवे एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, इट इज द रिले स्टेशन फॉर विजुअल पाथवे. तो इसको हम कैप कर देते हैं. नाउ लास्ट लाइन, जो मैंने एक बार बीच में आपका थोड़ा कनेक्शंस कट करने के लिए बीच में बताया था. These are the two clinical applied related to the thalamus. Okay. First is thalamic syndrome. What is thalamic syndrome? क्या होगा यदि thalamic syndrome किसमें होगा? If there is vascular infarct हो जाए, कोई थ्रोम्बस फंस जाए जो सप्लाई कर रहा हो इस एरिया को, artery which supply the thalamus as well as genu of internal capsule,
दैट आर्टरी इज नोन एज थैलेमो, सॉरी मैंने गलती से थर्मो लिखा, थैलेमो जेनिकुलेट आर्टरी। क्यों लिख दिया थर्मो? क्योंकि सुबह सुबह मेरा थर्मामीटर में टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है, थर्मामीटर यूज किया था। तो थैलेमो जेनिकुलर आर्टरी, उसमें थ्रोम्बस फंस जाए, इंफाक्ट हो सकता है थैलेमस का, ठीक है, वेस्कुलर लीजन। इससे क्या होगा देखो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। लिसन एवरीवन, आपने कुछ आपके अराउंड भी कुछ बच्चे देखे होंगे ऐसे, जैसे मैं अपना जगजीत को यहाँ पे हाथ लगाया मैंने, ऐसे कुछ नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टच कर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इनका तो मुझे पता है किनका थ्रेशोल्ड हाई है, इनका थ्रेशोल्ड हाई है, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्टिंग, वेरी गुड। तो थैलेमिक यदि इंफाक्ट किसी को हो जाता है, थैलेमिक लीजन किसी को होता है, थैलेमिक लीजन क्यों कर रहा हूं ऐसा? थैलेमिक लीजन होता है तो क्या होता है? नॉर्मली नहीं, नॉर्मली आपके आसपास में ऐसे पाए जाएंगे लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, झूठ मूठ ऐसा कुछ है नहीं उनको, थोड़ा सा ऐसे टच करते ही पता नहीं कितने घाव कर दिए। तो थैलेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, यदि किसी को थैलेमिक सिंड्रोम है, तो जैसे ये बच्चा, क्या नाम बेटा है, मोहित, स्टैंड अप। अभी देखो मोहित को मैंने छुआ यहां पे, तो इसने बताओ क्या अपना क्या इसका क्या वो था रेस्पॉन्स, ऐसा कुछ किया। सर देखो बाइसेप्स है, यदि इसका वेस्कुलर लीजन हो जाए थैलेमस के अंदर, थैलेमस में वेस्कुलर लीजन हो जाता है ना इसको, अब ये नॉर्मल है, तो इसने ये करके बताया सर कुछ नहीं होगा, लोहे की बॉडी है, लोहे की, ठीक है। यदि इसको थैलेमस में लीजन होता तो क्या होता है, ऐसे टच करते ही तो उससे क्या हो जाता है, डिक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ टच पेन टेम्परेचर। अब इसका थ्रेशोल्ड क्या है, हाई है, ठीक है, टच पेन टेम्परेचर के लिए थ्रेशोल्ड हाई है नॉर्मली। लेकिन यदि मैं कहूं ओनली टच करते ही चिल्लाता है, मीन्स थैलेमिक सिंड्रोम, ओके। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कई लोग स्पॉन्टेनियसली, अभी तो हंस रहे हैं तो ठीक है, स्पॉन्टेनियसली बैठे बैठे ही रोने लग जाएंगे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस लाफिंग एंड क्राई, दिस इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो थैलेमिक सिंड्रोम, बैठ जा बैठे, गुड, यस जीती। देखो अब ये तो बाई प्रेशर इसमें इसका भी चेहरा ऐसा क्राइंग टाइप वाला हो रहा है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इसको बहुत देर में भूल गया, खड़ी रह गई है, इसलिए थोड़ा सा हो गया। बैठो बैठो, यो इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बैठो, ओके। सो इमोशनल इंस्टेबिलिटी मीन्स स्पॉन्टेनियस क्राइंग एंड लाफिंग। नाउ लास्ट थिंग, चलो ये बताओ थैलेमिक, व्हाट इज थैलेमिक हैंड, व्हाट इज थैलेमिक हैंड? भल्लाल देव के पापा, ठीक है, भल्लाल देव के पिताजी क्या करते हैं, उसका हैंड, सी दिस एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ हैंड, एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ हैंड क्या है इसमें, लिसन लास्ट एक बार इसको, क्या है इसमें, फोर आर्म प्रोनेटेड, दिस इज द फोर आर्म, दिस इज सुपिनेटेड एंड दिस इज प्रोनेटेड, दिस इज प्रोनेटेड, ओके। रिस्ट इट इज फ्लैग, अरे सुन लो, यस क्लास, स्टैंड अप, स्टैंड अप, sit down, sit down, sit down, stand up, sit down, ओके। तो ये भी जरूरी है थैलेमस को सही जगह लाने के लिए। फोर आर्म प्रोनेटेड, रिस्ट फ्लैक्स,
MCP joint, metacarpophalangeal joint, it is flex, यहां से मैंने flex कर लिया. IP joint, interphalangeal joint, these are the IP joint. IP joints, these are extended. तो ये भी आज, अच्छा सही लिखा मैंने तो वो भी गलत लिख दिया मैंने. So IP joint extended. See this IP joint extended, MP joint flex, wrist flex, forearm pronated. बट उस पिक्चर में थोड़ा सा उसने ऐसे हाथ और यहां से भी कर लिया था, तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा. अदरवाइज उसका हैंड थैलेमिक हैंड लाइक था. आप देखना इसको वापस से कभी, तो वो ऐसे ही चलता है धीरे धीरे. शिवगामी अल्लाह अपना बेटा है, उसको वो बनाना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थैलेमस. थैंक यू.